Hello everyone, welcome to today's discussion on media literacy, media साक्षरता. The unchecked proliferation of information poses threats to the well-being of open and plural societies by fostering mistrust, amplifying polarization, and perpetuating intolerance. How does media literacy help address these challenges? Important questions. आप समझे, सूचना का अनियंत्रित प्रसार अविश्वास को बढ़ावा देकर, ध्रुवीकरण को बढ़ाकर और असहिष्णुता को कायम रखकर खुले और बहुलवादी समाजों की भलाई के लिए खतरा पैदा करता है। मीडिया लिटरेसी इन चुनौतियों से निपटने में कैसे मदद करती है? Firstly, you know what does media mean? Media, the plural of medium, broadly describes all channels of communication, including everything from printed paper to digital data. Media comprises news, art, educational content, and any form of information that can reach or influence people, including television, radio, books, magazines, and the internet. अर्थात मीडिया का मतलब है कि मीडिया मीडियम का एक बहुवचन है, व्यापक रूप से संचार के सभी चैनलों का वर्णन करता है, जिसमें मुद्रित कागज से लेकर डिजिटल डेटा तक सब कुछ शामिल है। मीडिया में समाचार, कला, शैक्षिक सामग्री और किसी भी प्रकार की जानकारी शामिल है जो लोगों तक पहुंच सकती है या उन्हें प्रभावित कर सकती है, जिसमें टेलीविजन, रेडियो, किताबें, पत्रिकाएं और इंटरनेट शामिल है। अब आप जाने टाइप्स ऑफ मीडिया। मेनली देयर आर 5 टाइप्स: प्रिंट मीडिया, ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, आउटडोर एडवर्टाइजिंग मीडिया, डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग मीडिया एंड इंटरनेट मीडिया। नेक्स्ट, यू नो व्हाट इज मीडिया लिटरेसी? मीडिया साक्षरता क्या है? द एबिलिटी टू एसेस, एनालाइज, इवैल्यूएट एंड क्रिएट मीडिया. Media literate youth and adults are better able to understand the complex messages we receive from television, radio, internet, newspapers, magazines, books, billboards, video games, music, and all other forms of media. To underscore the critical significance of a free and independent press in India, National Press Day is celebrated annually on 16 November. The day also commemorates the inception of the Press Council of India, which came into effect on the same date in 1966. Since its establishment, the Press Council of India has come a long way from tackling issues like media ethics and press safety to addressing the challenges of the digital age. The expansion of information and communication technology and the rapid spread of information today highlights the growing significance of media literacy in ensuring responsible journalism and countering misinformation. अर्थात भारत में स्वतंत्र प्रेस के महत्वपूर्ण महत्व को रेखांकित करने के लिए नेशनल प्रेस डे हर साल 16 नवंबर को मनाया जाता है। यह दिन इंडियन प्रेस काउंसिल की स्थापना का भी स्मरण कराता है, जो 1966 में इसी दिन लागू हुई थी। अपनी स्थापना के बाद से इंडियन प्रेस काउंसिल ने मीडिया नैतिकता और प्रेस सिक्योरिटी जैसे मुद्दों से निपटने के लिए डिजिटल युग की चुनौतियों का समाधान करने तक का लंबा सफर तय किया है। सूचना और संचार प्रौद्योगिकी का विस्तार और सूचना का तेजी से प्रसार आज जिम्मेदार पत्रकारिता सुनिश्चित करने और गलत सूचनाओं का मुकाबला करने में
मीडिया साक्षरता के बढ़ते महत्व को उजागर करता है। बिल्डिंग रेजिलेंस अगेंस्ट मिस इंफॉर्मेशन अर्थात गलत सूचना के विरुद्ध लचीलापन विकसित करना। द डेवलप ऑफ इंफॉर्मेशन टुडे कंपेल्स अस टू डेवलप resilience against misinformation, disinformation, and malinformation. The ubiquitous term disinfodemic referring to the way information and misinformation are intricately juxtaposed, made possible by the new ICT, underscores the need for a well-developed response to the pressing social problem. It raises another pertinent questions: how can one ensure an equitable access to accurate and ethically produced text, messages, videos, visuals, and other forms of content in a digital world? On one hand, to realize that despite the transformative potential of innovations in ICT, they hardly advance the elemental human search for truth. Contrarily, information is increasingly weaponized to breed mistrust, division, and intolerance, and its unhindered proliferation jeopardizes the larger goal of the well-being of an open and plural society. In today's media-structured culture, truth has become the first casualty. It sets the seal on what Jonathan Swift, the outstanding Anglo-Irish historian, asserted centuries ago: falsehood flies and the truth comes limping after it. In the digital age, lies diffuse quicker and penetrate deeper, often accepted unwittingly by people. The spread of violent misinformation, amplified by information technology and wrapped in plausible modes of expression, often foster radicalization that makes diversity, peace and sustainable development attainable. अर्थात ये समझिए आप कि आज सूचना की बाढ़ हमें गलत सूचना, भ्रामक सूचना, दुर्भावनापूर्ण सूचना के खिलाफ लचीलापन विकसित करने के लिए मजबूर करती है। यहां पर एक सर्वव्यापी शब्द है डिसइंफोडेमिक। जिस तरह से सूचना और गलत सूचना को नए ICT अर्थात इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी द्वारा संभव बनाया गया है को संदर्भित करता है, जो दबाव वाली सामाजिक समस्या के लिए एक अच्छी तरह से विकसित प्रक्रिया की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह एक प्रासंगिक प्रश्न उठाता है कि डिजिटल दुनिया में सटीक और नैतिक रूप से निर्मित पाठ, संदेश, वीडियो, दृश्य और अन्य प्रकार के सामग्री तक समान पहुंच कैसे सुनिश्चित की जा सकती है। किसी को यह महसूस करना होगा कि ICT में नवाचारों की परिवर्तनकारी क्षमता के बावजूद वे शायद इस सत्य की मौलिक मानवीय खोज को आगे बढ़ाते हैं। ठीक इसके विपरीत अविश्वास, विभाजन और असहिष्णुता को बढ़ावा देने के लिए सूचना का तेजी से हथियार बनाया जा रहा है और इसका निर्बाध प्रसार एक खुले और बहुत समाज की भलाई के बड़े लक्ष्य के खतरे में डालता है। आज की मीडिया संतृप्त संस्कृति में सत्य सबसे पहले हताहत हो गया है। यह उस बात पर मुहर लगाता है जो उत्कृष्ट एंग्लो आयरिश व्यंग्यकार जोनाथन स्विफ्ट ने सदियों पहले कही थी कि झूठ उड़ता है और सच उसके पीछे लंगड़ाता हुआ आता है। बात बिल्कुल आज के समय में प्रासंगिक है। डिजिटल युग में झूठ तेजी से फैलता है, गहराई तक पहुंचता है, जिसे अक्सर लोग अनजाने में स्वीकार कर लेते हैं और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा प्रवर्धित और अभिव्यक्ति के प्रशंसनीय तरीकों में लिपटे हिंसक गलत सूचनाओं का प्रसार अक्सर कट्टरपंथ को बढ़ावा देता है, जो डाइवर्सिटी, शांति और सतत विकास को टालना संभव बनाता है। जैसे आए दिन देखिए समाचार की सुर्खियों में आप देखते रहते हैं
कि कहीं ना कहीं इतनी र्यूमर उड़ा दी जाती है, गलत तरीके से पेश कर दिया जाता है, लोगों को उकसा दिया जाता है, जिससे हिंसक गतिविधियां होने लगती हैं, पत्थरबाजी होने लगती है, जैसे अभी हाल ही में आपने यूपी में देखा होगा। तो ये क्या है, ये झूठ और उसको गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके गलत तरीके से अफवाह उड़ा दी जाती है, उनको उकसा दिया जाता है, और इस तरीके से जिससे क्या कि कई लोग इसमें बलि के रूप में हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो ये आए दिन इस तरह की घटनाएं मिलती हैं। नेक्स्ट, मीडिया साक्षरता का तरीका विकसित करें। डेवलप ए वे टू विथ मीडिया लिटरेसी। इट इज टाइम टू पॉज एंड अंडरस्टैंड आवर इंफॉर्मेशन नीड्स डिजिटल राइट्स and the algorithm shaping how information is presented and disseminated, and finally explore how to navigate the turbulent sea of information. In an era where truth often takes a backseat, concrete facts get smoothed by emotional responses, primarily fueled by the social media. The wide but equally eager information seekers ought to understand who creates the message, what purposes it serves, and what creative techniques are used to make lies indistinguishable from the truth. The growing acquaintance with the dynamic of the ever growing media and information technology network has assumed greater importance now. Developing a distinct ability to analyze how political, religious, commercial, and ethnic allegiances affect human sensitivity is essential. This urgently needed skill can only be acquired if one understands and develops a way with media literacy. A widely used but least understood term, media literacy equips individuals to critically evaluate what is presented by the media as a objective truth. It empowers us to find meaning between the lines, not on them. Media literacy emphasizes cultivating critical thinking, enabling individuals to resist being swayed by rhetorical flourishes or polemics, means biased argument. It exposes how both print media and digital platforms have the potential for manipulative persuasions and are often used for further vested interests. To make us sensitive to religious, social, cultural, and racial prejudices, media literacy harps on critical thinking so that one can realize that all beliefs and ideologies, whether rooted in religion, nationalism, or other belief systems, often carry inherent biases. आप ये समझें कि यह समय है कि हम रुकें और अपनी सूचना आवश्यकताओं, डिजिटल राइट्स और सूचना को प्रस्तुत करने और प्रसारित करने के तरीकों को आकार देने वाले एल्गोरिदम को समझें, और अंत में यह पता लगाएं कि सूचना के आसान समुद्र को कैसे नेविगेट किया जाए। और ऐसे युग में जहां सत्य अक्सर पीछे छूट जाता है, ठोस तथ्य भावनात्मक प्रतिक्रियाओं से दब जाते हैं, जो मुख्य रूप से सोशल मीडिया द्वारा संचालित होते हैं। व्यापक दृष्टि वाले लेकिन समान रूप से उत्सुक सूचना चाहने वालों को यह समझना चाहिए कि संदेश कौन बनाता है, यह किस उद्देश्य से काम करता है, और झूठ को सत्य से अलग करने के लिए कौन सी रचनात्मक तकनीकों का उपयोग किया जाता है। लगातार बढ़ते मीडिया और सूचना प्रौद्योगिकी नेटवर्क की गतिशीलता के साथ बढ़ते परिचय ने अब अधिक महत्व प्राप्त कर लिया है। राजनैतिक, धार्मिक, वाणिज्यिक और जातीय निष्ठाएं मानवीय संवेदनशीलता को कैसे प्रभावित करती है, इसका एनालिसिस करने की एक विशिष्ट क्षमता विकसित करना आवश्यक है। यह तत्काल आवश्यक कौशल केवल तभी हासिल किया जा सकता है जब कोई मीडिया साक्षरता को समझे और विकसित करे। एक व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला लेकिन कम समझा जाने वाला शब्द मीडिया साक्षरता
मीन्स मीडिया लिटरेसी व्यक्तियों को मीडिया द्वारा ऑब्जेक्टिव ट्रुथ के रूप में प्रस्तुत की जाने वाली बातों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करने में सक्षम बनाती है। आज के दौर में हमें ये पंक्तियों के बीच अर्थ खोजने की शक्ति प्रदान करती है, न कि उन पर। मीडिया लिटरेसी आलोचनात्मक सोच विकसित करने पर जोर देती है, जिसमें व्यक्ति बयानबाजी या वाद विवाद से प्रभावित होने से बच सके। यह उजागर करता है कि प्रिंट मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म दोनों में ही हेर फेर करने की क्षमता है और अक्सर निहित स्वार्थों के आगे बढ़ाने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। हमें धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और नस्ली पूर्वाग्रहों के प्रति संवेदनशील बनाने के लिए मीडिया साक्षरता आलोचनात्मक सोच पर जोर देती है, ताकि कोई ये महसूस कर सके कि सभी विश्वास और विचारधाराएं, चाहे वे धर्म, राष्ट्रवाद या अन्य विश्वास प्रणाली में निहित हों, अक्सर अंतर्निहित पूर्वाग्रह रखती हैं। अब यहां पर जाने मीडिया साक्षरता के आयाम। 4 आयाम है, 4 डायमेंशंस ऑफ मीडिया लिटरेसी। मीडिया messages have a profound influences on society, and a renowned media scholars W. James Porter observed that all media messages include 4 dimensions: cognitive संज्ञानात्मक, इमोशनल भावनात्मक, एंड एस्थेटिक सौंदर्यबोध, एंड मोरल नैतिक। तो सबसे पहले आप समझें कॉग्निटिव संज्ञानात्मक, व्हाट सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन इज बीइंग ट्रांसमिटेड, किस प्रकार की जानकारी प्रेषित की जा रही है। इमोशनल भावनात्मक, द अंडरलाइन फीलिंग्स दैट आर बीइंग कंज्यूर्ड, अर्थात अंतर्निहित भावनाएं जो जागृत की जा रही हैं। नेक्स्ट इज एस्थेटिक अर्थात सौंदर्यबोध, द एस्थेटिक ब्यूटी एंड क्रिएटिविटी ऑफ द डिजाइन ऑफ द मैसेज, अर्थात संदेश के डिजाइन की कलात्मक सुंदरता और रचनात्मकता। नेक्स्ट इज मोरल नैतिक, द वैल्यूज बीइंग कन्वेड थ्रू द मैसेजेस, अर्थात संदेश के माध्यम से व्यक्त किए जा रहे मूल्य। These dimensions highlight that the intent of the message goes well beyond that what meets the eye. For instance, the sale of adulterated sweets and sweary snacks food was made the topic of talk shows on several channels during the recent festive seasons. However, few can be comprehend the subtle nonsenses of discussions discussed in the idiom of public good. At first sight, these discussions appear to show concerns for public health, informing views of the harmful effects of consuming adulterated sweets and snacks made with unhealthy ingredients. However, during commercial breaks, a leading actor endorses a popular chocolate product and a prominent actress promotes well-known snack brand. It implies that people should shift from traditional festive treats like laddus, barfi, and samosa to products manufactured by multinationals. Media literacy is of critical significance here as it empowers viewers to look beyond the surface and understand how health discussions at times can be leveraged as marketing tools. By understanding these nonsenses, viewers can make informed choices and resist being swayed by the celebrity endorsements. अर्थात ये डायमेंशन इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि संदेश का उद्देश्य आंखों से दिखाने वाले भाव से कहीं आगे तक जाता है। उदाहरण के लिए जैसा कि फेस्टिवल सीजन के दौरान कई चैनलों पर मिलावटी मिठाइयां, नमकीन, स्नैक्स की बिक्री को टॉक शो का विषय बनाया गया। हालांकि सार्वजनिक भलाई के मुहावरे में छिपी चर्चाओं की सूक्ष्म बारीकियों को कम ही लोग समझ पाते हैं। पहली नजर में ये चर्चाएं सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए चिंताएं दिखाती हैं। दर्शकों को मिलावटी मिठाइयां, अस्वास्थ्य सामग्री से बने स्नैक्स के सेवन के हानिकारक प्रभावों के बारे में बताती हैं।
हालांकि विज्ञापन ब्रेक के दौरान एक प्रमुख अभिनेता एक लोकप्रिय चॉकलेट उत्पादन का विज्ञापन करता है और एक प्रमुख अभिनेत्री एक प्रसिद्ध स्नैक ब्रांड का प्रचार करती है। मतलब यह है कि लोगों को लड्डू, बर्फी और समोसा जैसी पारंपरिक त्योहारी व्यंजनों से हटकर मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा निर्मित प्रोडक्टों का सेवन करना चाहिए। मीडिया लिटरेसी यहां महत्वपूर्ण महत्व रखती है क्योंकि यह दर्शकों को सतही बातों से परे देखने और ये समझने में सक्षम बनाती है कि कई बार स्वास्थ्य चर्चाओं की मार्केटिंग टूल के रूप में कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है और इन बारीकियों को समझकर दर्शक सूचित विकल्प बना सकते हैं और सेलिब्रिटी के विज्ञापनों से प्रभावित होने से बच सकते हैं। मीडिया साक्षरता के साथ शिक्षा को नया स्वरूप देना, रीशेपिंग एजुकेशन विथ मीडिया लिटरेसी, द बिगेस्ट थ्रेट्स टू अवर कलेक्टिव वेलबींग, misinformation, hate speech, conspiracy theories, and othering of the marginalized sections can only be countered through media literacy. Disinformation cannot be taken as a fake news, as UNESCO has pointed out the inherent contradiction of the term. If the content is fake, it cannot be news. News must be factual, non-fictional. Media literacy initiatives help to recognize how media frame issues, emphasizing the significance of sourcing, authenticity, credibility, and biases in mediated messages. By fostering critical thinking, online and digital rights, and social and emotional sensitivity, media literacy helps create an inclusive, participatory, and open society that empowers people. The dream of the global digital citizenship of a world not marred by the toxic ethnicity, religiosity, nationalism, and the algorithm-driven truths dished out by the omnipotent media can only be fulfilled by media literacy. Media literacy enables one to uncover the upscaled truths, questions racial, religious, and ethnic stereotypes, and foster connectedness across the diverse communities. Despite its significance, media literacy is unfortunately not included in the core curriculum across disciplines. One must agree with the Internet Matters United Kingdom, which state like reading, writing, and numerical skills media literacy should form a core basis of education. आप ये समझें कि हमारे सामूहिक कल्याण के लिए सबसे बड़े खतरे गलत सूचना, अभद्र भाषा, षड्यंत्र के सिद्धांत और हाशिए पर पड़े वर्गों को अलग थलग करना, इन सब का मुकाबला केवल मीडिया साक्षरता के माध्यम से किया जा सकता है। गलत सूचनाओं को फर्जी खबर नहीं माना जा सकता क्योंकि यूनेस्को ने इस शब्द के अंतर्निहित विरोधाभास को इंगित किया है। यदि सामग्री फर्जी है तो यह समाचार नहीं हो सकता। समाचार तथ्यात्मक होना चाहिए, काल्पनिक नहीं। मीडिया साक्षरता पहले हमें यह पहचानने में मदद करती है कि मीडिया किस तरह से मुद्दों को प्रस्तुत करता है। मध्यस्थ संदेशों में स्रोत, प्रामाणिकता, विश्वसनीयता और पूर्वाग्रहों के महत्व पर जोर देता है। आलोचनात्मक सोच ऑनलाइन और डिजिटल अधिकारों और सामाजिक और भावनात्मक संवेदनशीलता को बढ़ावा देकर मीडिया साक्षरता एक समावेशी, सहभागी और खुला समाज बनाने में मदद करती है जो लोगों को सशक्त बनाती है। सर्वशक्तिमान मीडिया द्वारा पेश की जाने वाली जहरीली जातीयता, धार्मिकता, राष्ट्रवाद और एल्गोरिदम चालित सत्य से प्रभावित न होने वाली दुनिया की वैश्विक डिजिटल नागरिकता का सपना केवल मीडिया साक्षरता द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। मीडिया साक्षरता किसी को अस्पष्ट सत्य को उजागर करने, नस्लीय, धार्मिक और जातीय रूढ़ियों पर सवाल उठाने और विविध समुदायों के बीच जुड़ाव को बढ़ावा देने में सक्षम बनाती है। इसके महत्व के बावजूद दुर्भाग्य से मीडिया साक्षरता को सभी विषयों के मेन सिलेबस में शामिल नहीं किया गया है। इंटरनेट मैटर्स यूके से सहमत होना चाहिए जिसमें कहा गया है कि पढ़ने, लिखने, संख्यात्मक कौशल की तरह
मीडिया लिटरेसी को शिक्षा का मुख्य आधार बनाना चाहिए। नाउ a important words, Press Council of India, National Press Day celebrated in 16th November in every year. प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की माइलस्टोन समझें, इसकी स्टार्टिंग कैसे हुई। फर्स्ट 1956 रिकमेंडेशन ऑफ फर्स्ट प्रेस कमीशंस, देन in 1966 establishment of PCI under the Indian Press Council Act 1965. After then in 1975 dissolution of the PCI during emergency, and next in 1979 re-establishment of the PCI under the Press Council Act 1978. तो देखिए इसका कैसा सफर रहा। प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया, अबाउट टू प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया मीन्स PCI, a statutory quasi-judicial autonomous authority set up under the Press Council Act 1978. Its compositions: chairman and 28 members. Chairman is a retired judge of Supreme Court nominated by a committee. Chairman of the Rajya Sabha, Speaker of the Lok Sabha, and a person elected amongst themselves by 28 members of councils. Its role: preserving the freedom of the press by maintaining and improving the standards of the newspapers and the news agencies in India. Now, some important questions relate to these lectures. First question is, what role does media literacy play in fostering critical thinking? आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने में मीडिया लिटरेसी क्या भूमिका निभाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन जनरेट, कैन मीडिया लिटरेसी एड्रेस इश्यूज लाइक मिसइंफॉर्मेशन एंड डिसइंफॉर्मेशन इफेक्टिवली? हाउ? दैट इट मीन्स, क्या मीडिया साक्षरता गलत सूचना और भ्रामक सूचना जैसे मुद्दों को प्रभावी ढंग से संबोधित कर सकती है? कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट आर द ब्रॉडर implications of the unchecked proliferation of the information for the well-being of open and plural societies? That it means, खुले और बहुलवादी समाजों की भलाई के लिए सूचना के अनियंत्रित प्रसार के व्यापक निहितार्थ क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कैन द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज बी harnessed to counter the weaponization of information, and if so, how? That it means, क्या सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की परिवर्तनकारी शक्ति का उपयोग सूचना के सशस्त्रीकरण का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है, और यदि हाँ तो कैसे? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, like reading, writing and numerical skills, media literacy should form a core basis of education. Evaluate. That it means, पढ़ने लिखने और संख्यात्मक कौशल की तरह मीडिया लिटरेसी को शिक्षा का मुख्य आधार बनाना चाहिए। मूल्यांकन करें। तो देखिए, दिस टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर सिविल सर्विसेज मेन एग्जाम्स। सो इसके आंसर लिखें और वैल्यूएशन कराएं। तो आज इतना ही। थैंक यू।